Hello and welcome to Perfection IAS. Today we are here to discuss the series which we are starting in our UPSC batch, that is the upcoming batch for 2024-2025. The series will be dedicated for UPSC essay writing, and this series will not only discuss about how to write essay, what to write in essay, what is a good essay, कैसे लिखें ऐसे को, स्टार्ट कैसे करें, एंड कैसे करें, बॉडी में कितने पार्ट्स होने चाहिए, हर एक चीज़. ऑल टुगेदर दिस सीरीज, एज आई हैव नेम्ड इट, इट्स अ सीरीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस ऑफ essay writing. We should first understand that कि art of essay writing or the science behind this essay writing, or what actually UPSC demands when it says that you should understand or you should write the essay of 250 marks, 125 each. 2 essay लिखने हैं. यूपीएससी के सिलेबस में essay के बारे में लिखा क्या गया है, 4 लाइन में यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइन किया है essay का. ठीक है, essay के लिए कौन सी बुक पढ़ें, इज देयर अ पर्टिकुलर सोर्स, या हम essay राइटिंग में जो कन्वेंशनल या जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मोरालिटी, philosophical themes of Gandhi ji, Ambedkar ji, or you can go to Socrates, Plato, Aristotle. But the problem here is, should we memorize all of it? Should we mug up all of it? Or should we develop that art to philosophize things as in the recent trend from 2021, 22 और 23 जो हमने देखा, that UPSC is focusing on philosophical part of essay writing. ठीक है, अब वाई फिलोसफी, वाई इज इट फोकसिंग ऑन ओनली फिलोसफी ओनली, वो भी एक रीज़न है, वो भी डिस्कस करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, दैट वाई इज यूपीएससी फोकसिंग ऑन फिलोसफी ओनली, वाई इज इट मूविंग अवे फ्रॉम द एकेडमिक टॉपिक्स और द कन्वेंशनल टॉपिक्स विच इट हैज़ बीन यूजिंग. ठीक है, और व्हाट इट एक्चुअली डिमांड्स फ्रॉम द यूपीएससी एस्पिरेंट व्हेन इट टॉक्स अबाउट और व्हेन इट गिव्स यू अ टॉपिक फॉर essay राइटिंग. ठीक है, तो बात करते हैं पहले what is an essay. एक essay होता क्या है? As the definition says that it's formal, it is formal. You cannot use informal language. It's analytical, that is you need to provide an analysis of the topic, that is both thesis, antithesis and synthesis. तीनों चीज़ें प्रोवाइड करनी है. It's a creative piece of writing. It should highlight your creative thinking. Unless and until you highlight your creative thinking, you're not going to make it a good essay while you're dealing with the topic. Then it also says that it's a written conversation. Why is it a written conversation? Or why is UPSC's 8 long papers, why are we attempting them in a written format? Because Indian bureaucracy is called as written bureaucracy. ठीक है, हर एक चीज़ लिखत में होता है. If you are not able to comprehend your ideas and then present them on a paper, then how will your seniors understand that what are you reporting to them? ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है. Then you need to also demonstrate through your essay the comprehensiveness of the topic. कि अगर आप किसी टॉपिक को कवर कर रहे हो तो उसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है. ठीक है, ऑल्सो यू नीड टू प्रोवाइड एन असेसमेंट, दैट इज इफ यू आर आर्ग्यूइंग ऑन सम पॉइंट यू नीड टू प्रोवाइड द लॉजिक फॉर दैट, यू नीड टू प्रोवाइड अ रीजन बिटवीन द टू ऑल्टरनेटिव्स, बिटवीन द टू वेज और बिटवीन द टू वेज एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. ठीक है, that is the point of assessment. That is, you need to also provide the points, arguments, counter arguments and then a balanced opinion. ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम यूजुअली सुनते आ रहे हैं कि ऐसे ऐसा होता है. ठीक है, बट जब हम इन स्लाइड्स के थ्रू जाएंगे, while we are going through the journey, आपको ये समझ आ जाएगा that it's much beyond body introduction and conclusion. ठीक है, इट्स मच बियॉन्ड द कोट्स, इट्स मच बियॉन्ड कि आप कोई डेटा याद कर लो, आपको रिसेंट कोई इवेंट पता है और आप उससे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लो, आपकी बॉडी में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, स्टेप्स, गवर्नमेंट सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ गए एंड यू आर डन विद योर एसे. दिस इज नॉट.
your essay has to be comprehensive. The essay has to be actually an essay. That is how you will score the average of the toppers. This is the top marks 176. Otherwise you will be in 110 to 115 marks. ठीक है, तो ये चीज़ है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है. Now while we are sliding through this PPT, you will understand micro level topics or micro level analysis of this paper, which we have 250 marks in UPSC, which we have to deal with. ठीक है. Now comes that if this was an essay, what is not an essay? Essay क्या नहीं है? It's not just a plain calculation or the collection of facts, phenomena, or something like as not memorizing the quotes, reports, shlokas of the Vedas or any other thing, or the normal proverbs which we are using. If you are memorizing them, it's okay, but if you are not using them, it's not an essay. If you are using them on a wrong place, it's not an essay. If you are using them but not actually correlating them or establishing the relevance before using that proverb, then it's not an essay. That is when we call that it should ensure a proper flow of thoughts. कि जब भी आप अपने थॉट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, लिख रहे हो, अरेंज कर रहे हो, क्रोनोलॉजी, रेलिवेंस बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. There is no single source where you can master this art of essay writing. Then what to do? You need to do with your GS plus optional plus current affairs plus your newspapers, all of it. You need to collect all of your points. Then only you need to arrange them chronologically. After that you can attempt or you can think about brainstorming an essay. Then you have to understand the essay, you have to understand its perspectives, you have to understand its dimensions, और उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है essay का. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. That how UPSC defines its essay. ये UPSC का सिलेबस है. ठीक है, मेंस के सिलेबस में UPSC ने 4 लाइन में essay को डिफाइन किया है. What it says first, that multiple topics पे ऐसे लिखना है, तो ये हमें 2 सेक्शंस देते हैं. 2 सेक्शंस में से हमें 4 और 4 ऑप्शंस आते हैं. 4 में से हमें बस 1 लिखना है और ये 1 लिखना कंपलसरी है. इसके मार्क्स 125. ठीक. The students will be expected to keep closely to the subject. You should not deviate from the subject. दैट इज़ अगर आपको कल को कोई रिपोर्ट मांगा जाए दैट आपके इलाके में एक स्लम है, वहाँ पे आप जाके रिपोर्ट बनाओ और वहाँ का एनालिसिस करो. यू शुड बी फोकस्ड ऑन दैट ओनली, और आपका रिपोर्ट वहीं पे फोकस्ड होना चाहिए. आप उस स्लम के साथ बहने वाले रिवर का पोल्यूशन और पोल्यूशन के साथ फिर पोल्यूशन के कॉजेज़, पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस एंड पोल्यूशन, उस रिवर के पोल्यूशन के बाद उस रिवर वो जाता कहाँ है, वो किस नदी में जाता है, नीचे जो सोसाइटी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ नहीं जाना है. You need to understand this thing that while making reports, your report should be comprehensive but not deviating from the topic. That is what UPSC means when it says that you should not deviate from your essay topic. You also need to arrange their ideas in orderly fashion. ठीक है? While arranging your ideas in orderly fashion, you need to maintain this flow of thought. यही है जो terminology हम use करेंगे essay में. That is your objective parameters. What I said by this reporting, or what I said when we discussed this point, that is you are expected to remain closely within the foundations of the essay topic. You cannot deviate. You can give examples, you can establish relevance of those examples, but you cannot deviate properly or you cannot deviate totally from the topic. ठीक है? उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो then you will see that you need to arrange your ideas orderly fashion. ठीक है? तो जब भी हम brainstorm करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, जितने भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स पे जितना भी हम brainstorm करेंगे, we will see कि ये जो flow of thoughts होता है, हमारे सबकॉन्शियस से पॉइंट्स आते हैं,
हमारा सबकॉन्शियस हमें पॉइंट्स देता है बट वो ऑर्डरली फैशन में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी वैसे अपने आप को ट्रेन किया ही नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस ऐसे ट्रेन ही नहीं हुआ है दैट इट विल प्रोवाइड अस अ क्रोनोलॉजी। अब इस ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है दैट यू ज्वाइन दिस एसे somewhere, you start practicing this essay. You need to establish the minimum criteria for writing the essay. You need to start with minimum set of points कि जो पॉइंट्स आपको ज़रूरी है ऐसे में लिखने, जो पैरामीटर्स ज़रूरी है ऐसे में रखने, उन पैरामीटर्स को सामने रख के उनको गाइडलाइंस बना के उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट। देन ओनली वाइल यू आर ब्रेन स्टॉर्मिंग your flow of thoughts on a rough page, then you will arrange them serially 1 2 3 4 5 और ये अरेंजमेंट करने के बाद आपको समझ आएगा कि अब इनको लिखना कैसे है ऐसे में। ठीक है, वी विल डू ऑल ऑफ दिस प्रैक्टिस टुडे। ठीक है, एक एक्सरसाइज करेंगे हम एक ऐसे का एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो जो ऐसे होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट विल सेट द बिगिनिंग फॉर योर जर्नी ऑफ ऐसे राइटिंग। ठीक है, आज ही हम स्टार्ट करेंगे ऐसे लिखना। You will designate a day in your week, आप उस दिन ऐसे लिखेंगे, उस दिन आप 2 ऐसे लिखेंगे, ये आप डिसाइड करके रखो। टॉपिक्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर एंड, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी जिस पे टॉपिक्स होंगे, आपने वो एसेस लिखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नाउ तो अरेंज देयर आइडियाज इन द ऑर्डरली फैशन, देन you need to write concisely, that is first is word limit। ठीक है, when we say ना UPSC में जब भी हम लिखते हैं that concise writing, ठीक है, concise writing का concept जब भी आता है you need to ensure 2-3 things। One is time, words and pages। ठीक है, ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास वर्ड लिमिट है उतनी ज़्यादा कि आप जितना लिखो उतना लिख सकते हो, ना आपके पास पेजेस उतने ज़्यादा है कि आप जितना लिखो उतना लिखो। ठीक है, तो अगर आप तीनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंटली, दिस विल सेट यू आउट ऑफ ऑल द भीड़ जो आपके साथ ऐसे लिख रही है। दिस विल इंश्योर और दिस विल सेट एन इमेज ऑफ योर्स दैट यू आर अ गुड रिसोर्स मैनेजर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी हम पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में, यू शुड बी अ गुड रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, इंडिया विच इज़ अ डेवलपिंग कंट्री है ना, योर स्टेट योर डिस्ट्रिक्ट इज़ अ डेवलपिंग एरिया, यू आर इन दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और अगर आपको ये रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं आता, जहाँ पे आप फंड्स शॉर्ट कर रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड्स नहीं है, आपके पास ग्रांट्स नहीं आ रहे हैं स्टेट से, आपके पास रिसोर्सेज कम है, लेबर कम है, एम्प्लॉयज़ कम है, यू डू नॉट हैव दैट लॉजिस्टिक्स, but still you are managing your time, words and pages, it means that you are a good resource manager, you will manage your post very well। ठीक है, that is why you need to ensure this concise writing। उसके बाद आते हैं that credit will be given to effective and exact expressions। आपको जो बात बोलनी है वो कम शब्दों में आगे वाले इंसान तक पहुंच जाए, बस इतना इंश्योर करना है कि आप इतना ज़्यादा उलझे ना, आप अपने लैंग्वेज, ग्रामर या लेजिबिलिटी दैट इज़ हैंड राइटिंग, इसको इतना ज़्यादा ना उलझाए कि आगे वाले को समझ ही ना आए। आप इतना छोटा भी ना लिखें कि आगे वाला समझ ही नहीं पाए, उसको डिक्शनरी उठा के लेके बैठना पड़ जाए कि ये क्या लिखा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का बात ही नहीं है यहाँ पे जो बात है वो ये है कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आप जो कहना चाहते हो वो चीज़ क्लियर कट वे में आपके सामने वाले तक पहुँच जाए। दैट इज़ कॉल्ड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेयर द स्पीकर एंड द लिसनर आर इन टैंडम विद ईच अदर, दे आर बोथ सिंक्रोनाइज्ड, कि जो स्पीकर बोल रहा है वो लिसनर सुन रहा है, एंड बोथ ऑफ देम आर अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्सेशन वेरी वेल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड दिस इज़ अबाउट योर फर्स्ट टास्क वाइल यू आर अप्रोचिंग एन एसे, यू शुड राइट इट डाउन दैट फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट
and the most and the foremost important which task which you have to start with today is connecting the dots. Connecting the dots means कि जितना भी आपने आज तक पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी कोई भी चीज़ पढ़ ली, जैसे आपने एक चीज़ पढ़ ली दैट धारावी में, ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया धारावी मुंबई एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम है, ठीक है, हमने पढ़ लिया. नाउ व्हाट डू यू नीड और व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू विद दिस टॉपिक और व्हाट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू विद दिस एग्जाम्पल और दिस केस स्टडी is you need to collect at least 5 more points about this topic or this micro topic. Once you have collected these 5 more points, you will be amazed और आप इतने ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे इन 5 पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद कि जब आप देखोगे कि ये जो स्लम्स का प्रॉब्लम है या ये जो धारावी में जो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है. ये एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है, ये अर्बनाइजेशन से कनेक्टेड है, ये सैनिटेशन से कनेक्टेड है, ये लाइवलीहुड से कनेक्टेड है, ये हेल्थ से कनेक्टेड है, ठीक है, ये वहाँ का हाउसिंग से कनेक्टेड है, मुंबई बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ये इनइक्वालिटी से कनेक्टेड है. तो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, ये 5 पॉइंट कलेक्ट करने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके जीएस के कम से कम 3 पेपर्स में लिंक हो सकता है. कम से कम 3 पेपर्स में आप इसको लिंक कर सकते हो. एंड देन यू नीड टू कनेक्ट दीज डॉट्स विद व्हाट, विद योर जीएस सिलेबस. वंस दिस इज डन, then only you will be in a position or in a condition to understand this thing that now which of these 5 points can I use in my essay. आपको यहाँ से 2 से 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप एसे में लिखोगे, और ये 3 पॉइंट्स को आपको डिसाइड करना है दैट वेदर आई नीड टू राइट देम इन वेयर, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. अगर आपको ये समझ आ गया तो दिस इज योर फर्स्ट टास्क, ठीक है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, आप कुछ भी चला रहे हो, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है. डू कलेक्ट दीज पॉइंट्स, डू कलेक्ट दीज डॉट्स, and once you are collecting these dots, then connect these dots, and once you are connecting these dots, then you need to analyze these dots, और इन डॉट्स को कलेक्ट करने के बाद आपको इनको यूज करना है आपके एसे में, ठीक है. मेक सेंस. सबसे ज़्यादा फोकस आपको केस स्टडीज पे करना है, बिकॉज दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स विच डिपेक्ट यू एज अ प्रैक्टिकल सिविल सर्वेंट. क्योंकि हमने काम करना है फील्ड पे, हमें बस किताबों पे लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, हमें काम करना है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट. अगर आप अपने एसे में यूज़ करते हो कोई भी केस स्टडी, दिस विल सेट यू अपार्ट, ठीक है. नॉर्मल टिप फॉर यू, ठीक है. बी थैंकफुल फॉर दैट. चलो आगे चलते हैं. नाउ वाई एसे पेपर. हम इस एसे पेपर को इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दे रहे हैं? बिकॉज भाई साहब इसको वेटेज दिया है यूपीएससी ने, हम नहीं है वेटेज देने वाले. इसको वेटेज देने वाला यूपीएससी खुद है, बिकॉज इट्स अ कंपलसरी पेपर, ठीक है. पहली चीज़ कंपलसरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. आपको यहाँ पे जितने भी मार्क्स आते हैं वो आपके मेरिट में काउंट होते हैं, ठीक है. अगर आपका एसे अच्छा है तो आप एथिक्स में एज पाते हो, ठीक है. अगर आपका एसे अच्छा है तो आप सोसाइटी में एज पाते हो, सोसाइटी के पेपर में, ठीक है. अगर आपने एसे के लिए पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, केस स्टडीज़ कलेक्ट कर ली है, तो आप GS 3 जो कि पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, यहाँ पे काम आ सकता है. आपके स्कीम्स काम आ सकती है. आपने जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट किए होंगे हेल्थ केयर को लेके, आपने स्कीम्स कलेक्ट की होंगी, आपने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके स्कीम्स कलेक्ट की होंगी, गवर्नमेंट के स्टेप्स कलेक्ट किए होंगे, आपको काम आ जाएंगे, ठीक है. तो दिस पेपर इज़ बियॉन्ड इट्स स्कोप, ठीक है. एसे का पेपर एसे में हेल्प करेगा ही, बट आउट ऑफ इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन GS एंड इन योर एथिक्स पेपर, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. दिस कंपलसरी पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर है. पेपर 1 मेंस का इज एसे, ठीक है.
पहले दिन आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन इट्स वेटेज इन द फाइनल आउटकम ऑफ द सिलेक्शंस। जब भी हम देखते हैं तो जीएस के एवरेज मार्क्स जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स के, टॉपर्स के देखो आप तो ऑन एन एवरेज वही रहता है कि 110 से लेके 130 140 तक, ठीक है, जीएस के मार्क्स विद टॉपर्स एंड ऑल, मतलब सबके। बट ऐसे इज़ द ओनली पेपर जहाँ पे आपको एज मिल सकता है दिस 176 पाने का, ठीक है। दिस द ओनली पेपर जहाँ पे आप कर सकते हो। एवरेज जीएस का है 95 to 100, दिस इज़ दी एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एफर्ट लगाना है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिस हैज़ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई आई रोट हियर दैट व्हाट्स इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो मूविंग अहेड and starting this essay, that how this essay, that if you start your essay or if there is a good essay which you have written, what will it depict about your personality, ठीक है। अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो essay से झलकती है कि आप चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करते हो। क्या आपका अप्रोच पैरोकियल है, क्या आप बस एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो, या आप ये भी देख रहे हो कि इस एसे को लेके या इस टॉपिक को लेके इसके बैकग्राउंड में क्या था, इसके फोरग्राउंड में क्या है, इससे रिलेटेड कितनी और चीज़ें हैं। दैट इज़ हाउ दिस एसे विल डिपिक्ट योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ हाउ इट विल सेट दी बेंचमार्क ऑफ योर एग्जाम प्रिपेयर्डनेस। कि जब भी आप एसे लिखने बैठ जाओगे, आप तभी लिख पाओगे जब आपके जीएस के 4 पेपर्स प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छा ऐसे लिख रहे हो तो आपका जीएस अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। और अगर आपके ऐसे में करंट अफेयर्स नहीं है, इफ़ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद करंट अफेयर्स, तो आपके ऐसे में भी नहीं आएगा। और अगर नहीं आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, दैट यू आर स्टिल लैकिंग ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा दैट दिस इज द बेंचमार्क ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं हो रही है तो देन हाउ विल यू गो थ्रू दी एसे, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी, दिस प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द टॉपिक्स इन डेप्थ, प्लान योर टॉपिक वेरी वेल एंड प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फैशन, ठीक है। अगर आप एसे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, this will set you apart in your understanding, this will set you apart in your presentation, because ऐसे में ये स्कोप होता है कि आपके पास 1000 से 1200 वर्ड्स का स्कोप है, आपके पास 6 से 7 पेजेस का स्कोप है। आप उन पेजेस पे अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करो, आपके पास स्कोप होता है कि आप अपने आप को करेक्ट करो अगर आपसे गलती भी हुई है तो। दिस स्कोप इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय जीएस आंसर्स, ठीक है। जीएस में आपके पास बस 150 आंसर वर्ड्स है, 250 वर्ड्स है, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे आपके पास स्कोप लिमिटेड है। तो यहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। दिस एसे रिफ्लेक्ट्स द एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ऑफ अ स्टूडेंट। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? जब भी आपके पास एक एकेडमिक ऐसे आएगा या कोई फिलोसॉफिकल ऐसे आएगा, आपको ये समझना है कि इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है, और अगर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, दिस मीन्स दैट योर माइंडसेट इज ओनली अबाउट अवॉइडिंग द प्रॉब्लम्स, यू जस्ट वांट टू ले इन योर कंफर्ट जोन, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, ठीक है। जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, दैट इज द जॉब फिटनेस। ऐसे ओनली डिपिक्ट्स कि हाउ मच फिट और हाउ मच रेडी आर यू फॉर दिस जॉब। This reflects that how a student or how a candidate who just has graduated will be an able administrator or will be an able person to hold the responsibility of policy making. अगर आप ऐसे को ध्यान से देखो तो ये समझ आएगा कि आपका जो अप्रोच है वो पॉलिसी मेकिंग का अप्रोच है। क्यों? क्योंकि एकेडमिक ऐसे जितने भी आपके पास आएंगे, all will be dealing with the practical problems which are there in the government, which are there in the society, which are there in our economy, ठीक है। तो that is how you need to understand the importance of essay, ठीक है। Now
द थीमेटिक एरियाज जो हमारे यूजुअली बोला जाता है दैट दीज आर द कन्वेंशनल एरियाज जहाँ पे आपको you can prepare your essays on these topics well in advance. That is development of society, society का development जिसमें women empowerment, ठीक है, demographic dividend, education, ये सब चीज़ें आ जाएगा. That how you need to develop your society well, what's the behavioral tendency of the society, why is crime there in the society, how to understand the education, parenting, democratic parenting or the autocratic parenting or the permission oriented parenting, what's the problem with the family, what is the issue of women security at workplace, ये सब चीज़ें आपको समझ आ सकती है यहाँ पे. Then ethical and behavioral modifications which we require in our society. ये चीज़ें ज़रूरी है प्रिपेयर करना. दैट हाउ एंड वाई टू मॉडिफाई योर सोसाइटी, व्हाट शुड बी द अप्रोच वाइल वी आर डीलिंग विद स्वच्छ भारत मिशन, व्हाट शुड बी द अप्रोच वाइल वी आर डीलिंग विद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल चीज़ें. इनके सोल्यूशन के लिए यू नीड टू revolutionize the masses. You need to inculcate these behaviors, these habits into the society. Then only ये चीज़ें रुकेंगी. ठीक है. Cleanliness is something which we have to maintain at our personal level. And if there is a policy on cleanliness, तो ये personal level पे, individual level पे implement होनी चाहिए. It's not only about the government is implementing it, they are making toilets. No one is using them, they are keeping them as a store for their inventory. No one is using them. Why? Because they're less number of people are using them. While we have gone through the this surveys, and while we have gone through the status of ODF and ODF plus and ODF plus, जब आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा that there are much more beyond, there are much more steps which yet have to be taken after this SVM or after the collection or construction of the toilets. उसके बाद भी और कुछ था. That is where your behavioral modification of the society comes in picture. Inclusive economy, livelihood, social justice, इन सब topics पे आप prepare कर सकते हो. You can take a screenshot of this slide or you can note these down and you can keep these topics as these are the conventional topics which you need to prepare. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. हाउ टू चूज अ सूटेबल टॉपिक, बिकॉज ऐसे का जो पेपर है इसमें 2 सेक्शंस होंगे. यहां पे भी आपको 4 ऑप्शंस होंगे और यहां पे भी आपको 4 ऑप्शंस होंगे. कन्वेंशनली बिफोर 2021 यूपीएससी यूज्ड टू डू वन थिंग कि ये फिलोसफिकल होता था सेक्शन ए और सेक्शन बी वॉज एकेडमिक, और सेक्शन बी वॉज फिलोसफिकल और ए वॉज एकेडमिक. ठीक है. अब हो क्या रहा था प्रॉब्लम यहाँ पे, दैट वन ऑफ द सेक्शंस इज फिलोसफिकल, यू कैन टेक 1 आउट ऑफ द 4 इन बोथ द सेक्शंस. प्रॉब्लम ये है 8 आउट ऑफ 8 केम फिलोसफिकल इन 2022. ठीक है. 8 के 8 फिलोसफिकल आ गए और तब से ये 2023 में भी फॉलो हुआ है दोनों चीज़ें. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज which topic to select. First is comparative analysis. Why do I said that first thing is comparative analysis? Because you need to choose this here. The first point is the point of decision making. अगर आप एक if you are a good bureaucrat, अगर आप एक practical civil servant हो, then you will be very much practical in your decision making. अगर आप डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस. आपकी पॉलिसीज सही होंगी, आपकी पॉलिसीज अच्छी होंगी और उसी के साथ आपका अप्रोच भी प्रैक्टिकल होगा. दैट इज द कंपैरेटिव एनालिसिस. कंपैरेटिव एनालिसिस आप तब करोगे दैट यू नीड टू एलिमिनेट 3 ऑप्शंस एंड यू नीड टू सेलेक्ट 1 ऑप्शन. ठीक है. तो जब भी हम रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं ना, वेबर जब बोलता है दैट रैशनल डिसीजन मेकिंग, Max Weber, he talks about something called as rational decision making, and this decision making depends on alternatives
एंड दीज ऑल्टरनेटिव्स, वंस यू फाइंड दीज ऑल्टरनेटिव्स, जो आपको यूपीएससी यहाँ पे दे रहा है ऑल्टरनेटिव, 4 ऑल्टरनेटिव दे रहा है, you need to rationalize between these alternatives. rationalize करने का मतलब क्या है, आपको रीजनिंग करना पड़ेगा कि मैं ये वाला क्यों करूं और ये 3 क्यों ना करूं. सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट सेलेक्टिंग 1 बट एलिमिनेटिंग द 3. ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना है, यू कैन प्ले अ सेफर बेट, दैट इज यू कैन अवॉइड the more philosophical ones and you can take less philosophical ones, और the regular conventional topics जो हमने इससे पहले स्लाइड में देखे, जहाँ पे नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होंगे, जहाँ पे नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक सेक्युलरिज्म नहीं होगा, जहाँ पे नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है, तो वो टॉपिक्स जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे टॉपिक्स होंगे तो यू कैन डायरेक्टली टेक दीज टॉपिक्स एज इट इज और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज प्लेइंग द सेफर बेट. बट देयर शुड बी 3 M's. दैट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग दिस एसे, द मेथड ऑफ राइटिंग दिस एसे एंड द मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द रीडर ऑफ दिस एसे. अगर आप ये 3 चीज़ें कंसिडर करते हो, दिस विल बी द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू एलिमिनेट द 3 ऑप्शंस. ठीक है, कि आपका मेन मोटिव क्या है इस एसे को लिखने का. दैट शुड बी ओनली कि आपका पहला होल्ड अच्छा है, आपने इस टॉपिक को पहले प्रिपेयर किया हुआ है, आपका इस पे नॉलेज बेस अच्छा है, आपके पॉइंट्स प्रिपेयर्ड है, उसके बाद ही आप इस एसे को प्रिपेयर कर रहे हो और लिख रहे हो. और आपको ये पता है कि अगर आप इस एसे को लिख रहे हो, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि ये ऐसे सब लोग लिखेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे सब लोग ऐसे लिखेंगे, बट यू शुड बी नोइंग दिस थिंग कि आपके पास कैसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबके पास नहीं होंगे. देन ओनली आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, आपका जो मेथड ऑफ राइटिंग है वो क्लियर होना चाहिए. philosophical and opinionated essays, you can take these, but you need to ensure only one thing, that is you need to decode the essay very well. You also need to find out perspectives of this essay. ठीक है, अगर आप ऐसे को फिलोसफिकल ऐसे को या ओपिनियनेटेड ऐसे को, जहाँ पे आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाए, जहाँ पे आपको पता है कि आपको अपना ओपिनियन देना ज़रूरी है, उस ऐसे को डिकोड करना ज़रूरी है और उस ऐसे के पर्सपेक्टिव्स ढूंढना ज़रूरी है. वी विल टेक एन ऐसे एट द लास्ट ऑफ दिस स्लाइड और हम समझेंगे कि पर्सपेक्टिव्स डायमेंशंस में अंतर क्या होता है और कैसे समझते हैं उस चीज़ को. ठीक है, चलिए. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे, कि एक ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करना है. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि आपका इंट्रोडक्शन इट कैन गो टू 120-150 वर्ड्स ओनली, उससे ज़्यादा आप ना जाएं तो दैट विल बी बेटर. आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव, इफ़ यू डू नॉट हैव यू कैन मेक सम. यू कैन स्टार्ट विद अ कोट, you can start with a recent incident, you can start with a statement passed by any government authority, minister, foreign minister, this S. Jaishankar, or some legal expert like Justice P. N. Bhagwati or Justice Chandrachud. You can start with that. Why you need to start with these things? Because these are the instruments which we use to gain the attention of the reader. The reader should be engrossed and immersed into your introduction. वो जब आपका पहला लाइन पढ़े उसको ऐसा लगे that अब उसके पास और कोई काम नहीं है, उसको बस यही ऐसे पढ़ना है. He cannot leave a line without reading. That should be the point of introduction. और अगर आपका इंट्रोडक्शन ऐसा है 5 लाइन का इंट्रोडक्शन या 10 लाइन का इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, ठीक है, आपके इंट्रोडक्शन में 100 वर्ड्स आ गए और आपने ये इंट्रोडक्शन लिखा ऐसा और वो एक लाइन भी स्किप नहीं कर रहा है एंड ही इज़ एनग्रॉस्ड इनटू दैट इंट्रोडक्शन, बिलीव मी वो एंड तक इसी ऐसे में रहेगा. हिज माइंड विल नॉट वेंडर अराउंड, विच इज़ द बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एवरीवन, दैट वी हैव दिस मंकी माइंड. ठीक है, हमारा दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहता. दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग ऑन मेडिटेशन. ठीक है, हमेशा मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं लोग?
Why is anxiety an issue in students? Because we do not have that stable mind. That stable mind is the biggest challenge. और वही स्टेबल माइंड है चैलेंज रीडर के लिए भी, जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके लिए भी सेम प्रॉब्लम है, दैट हिज माइंड इज ऑल्सो मंकी माइंड. तो उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड योर इंट्रोडक्शन. दैट इज आपका इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि वो इंट्रोडक्शन छोड़ के कहीं और ना जाए, वो बॉडी में जाए तो उसको वो चीज़ याद रहे, वो कंक्लूजन तक पहुँचे तो उसको वो चीज़ याद रहे कि वो क्या पढ़ रहा है. अट्रैक्शन और जस्ट सिंपल एग्जाम्पल इज अ मूवी ट्रेलर. आप जब ट्रेलर देखते हो दैट इज़ द ओनली पॉइंट कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि अब मूवी देखना ज़रूरी है. ठीक है, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, वो इंट्रोडक्शन आपका ट्रेलर होना चाहिए आपकी मूवी का. एंड दैट मूवी इज़ दिस विच इज़ योर बॉडी. ठीक है, आपकी मूवी में हर एक सीन होना चाहिए. ठीक है, देर शुड बी सम पार्ट ऑफ माइथोलॉजी ऑल्सो, देर शुड बी सम पार्ट ऑफ कल्चरलिज्म ऑल्सो, देर शुड बी सम पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो. ठीक है, दैट इज़ वाई मूवी हिट हो जाएगी. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना है जब आप अपना बॉडी लिख रहे हो. ये आपके पॉइंट्स हैं. बॉडी लिखने के बहुत सारे अप्रोचेस हैं, whether that is the approach of starting with an individual, then state, village level, state level, national level, international level. You can start with your personal level, you can start with the level of your teachers, your school, then your university, then at the national level or at the professional level, then you can go to the international institutions, or you can start with history, geography, polity, economy, same the approach of UPSC syllabus of your 4 papers. You can like easily scroll down to the ethics paper, and then at the last you can end up your this essay with the last impact of the silver lining or the societal impact or the optimism, whichever you choose. ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है. The approaches of the body we will be discussing in detail while we are going through this series. ठीक है, हर एक ऐसे का एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको ये भी समझ आएगा कि बॉडी के कितने अप्रोचेस हैं. फॉर बिगिनर्स यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड देन मूव टू कंक्लूजन. कंक्लूजन शुड बी द लास्ट इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आता है मार्क्स लेने का, और अगर आप यहाँ पे मिस कर गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे उसको कितना ही मज़ा आ गया हो मूवी देखने में. ये ऐसी बात है कि मूवी का क्लाइमैक्स अच्छा नहीं था, और क्लाइमैक्स अच्छा नहीं है तो रेटिंग भी अच्छा नहीं मिलेगा. तो आपको रेटिंग चाहिए अच्छा, 9.8 रेटिंग चाहिए तो वो कंक्लूजन से मिलेगा. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. You need to ensure time management in your essay. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे essay में? आपके पास 90 मिनट है. पहले 10 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, अगले 3 से 4 मिनट आप अपने ब्रेनस्टॉर्म किए हुए पॉइंट्स को सीरियली ऑर्गेनाइज करेंगे नंबरिंग के साथ. दैट विल इंश्योर योर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आप ऐसे लिखना शुरू कर देंगे. 90 मिनट्स आपके हर ऐसे में मिलेंगे, पहले में 90 मिनट्स, दूसरे में 90 मिनट्स. You should not lose out on your time track because there will be a trap in your essay. क्या आपका एक सेक्शन का ऐसे इजी होगा, दूसरे सेक्शन का इजी ऐसे जो है टफ होगा. होता क्या है एक्चुअल में, वी हैव दिस टेंडेंसी कि अगर हमने अपनी पसंद का, हमको समझ में आ गया ये वाला ऐसे है जहाँ पे मेरा होल्ड है और हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो सेकंड चॉइस विल बी द बैड चॉइस. जो आप दूसरे सेक्शन में चूज़ करोगे वो आपका बैड चॉइस होगा. वहाँ पे ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है. वो जब आप चूज़ करोगे देन यू नीड टू ऑल्सो इंश्योर दिस थिंग कि जो आपने पहला चॉइस किया वहाँ पे आपका कंफर्ट जोन है. उस कंफर्ट जोन की टेंडेंसी में आपको नहीं पढ़ना है कि आप उसी ऐसे को लिखे जा रहे हो 6 पेज 7 पेज हो गए और आप उसी ऐसे को लिख रहे हो और आप उस ट्रैप में फंस गए और आपके पास टाइम नहीं बचा, क्वालिटी पॉइंट्स नहीं बचे जो आप दूसरे ऐसे में लिख पाओ. ठीक है, दैट कंफर्ट जोन टेंडेंसी और कंफर्ट जोन ट्रैप शुड नॉट बी देयर. You cannot lose out on the time track. You cannot do injustice to the second essay which I already defined कि कैसे नहीं करना है. अगर आपने दोनों essays का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया, that only will portray your image as a good time manager जिसके पास resources की अहमियत होती है, वो समझता है resources को कैसे यूज़ करना है, efficient management कैसे करना है. एंड अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे लैक करते हैं इट मीन्स यू आर लैकिंग ऑन योर जॉब फिटनेस, और आपको बोला जाएगा बेटा अगले साल आना. कन्फाइनिंग योर सेल्फ इन द कंफर्ट जोन
दैट इज़ यहाँ पे गेम है सारा कि अगर आपने एक ऐसा ऐसे ले लिया जहाँ पे आपको कंफर्ट है और एग्जामिनर को दिख रहा है कि पहला ऐसे बहुत अच्छा है और दूसरा ऐसे बहुत बुरा है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर लेगा इस चीज़ को कि आपके अंदर एक टेंडेंसी है, आप चैलेंज लेना ही नहीं चाहते हो, आप हमेशा चाहते हो कंफर्ट जोन में पड़े रहना, और वहाँ पे पड़े रहोगे तो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा और ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट ऐसा होगा कि आपके दोनों एसेज में कम नंबर आ जाएंगे, ठीक है, वेदर दैट इज फिलोसफिकल और द एकेडमिक एसे। चलो ठीक है, यू शुड नॉट प्ले सेफ बिकॉज अदरवाइज दे विल प्ले, ठीक है, सेफर देन यू। चलो, हाउ टू गेट स्टार्टेड, कीप योर कॉपी एंड पेन रेडी, ठीक है, आप एक काम करो, यू शुड अंडरस्टैंड दैट योर एसे इज नॉट ए रिप्लाई, इट्स ए रिस्पॉन्स। आपको आराम से बैठ के समझ के ब्रेनस्टॉर्म करके अपने पॉइंट्स को अरेंज करना है सीरियली, और उसके बाद आपको एक फ्लो ऑफ थॉट्स मेंटेन करना है और तब जाके आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंग्वेज, सब लोग बोलते हैं आपका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपको लैंग्वेज पे कितना कमांड होना चाहिए, क्या आपकी अंग्रेज़ी ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे डॉक्टर शशि थरूर बोलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, सिंपल इफेक्टिव ग्रेजुएशन लेवल लैंग्वेज होना चाहिए, आपके लैंग्वेज पे ऐसा कमांड होना चाहिए कि नॉट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स बट द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, बस आपको अंग्रेज़ी लिखना आता है, दैट इज़ इनफ फॉर अस। दिस इज़ अ कम्युनिकेशन टेस्ट। वाई इज़ इट अ कम्युनिकेशन टेस्ट? ऐसे कम्युनिकेशन टेस्ट क्यों है? क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट फाइल्स हैं जिन पे आपको लिखना है, ये गवर्नमेंट फाइल्स आपके सबॉर्डिनेट्स को भी जाएंगी, ये गवर्नमेंट फाइल्स आपके पीयर्स के पास भी जाएंगी, रिपोर्ट्स आप बनाओगे वो भी आपके पीयर्स के पास जाएगा, पॉलिसी मेकिंग में यूज़ होगा, आपके सीनियर्स उन पेपर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उन सबको वो समझ आना चाहिए। दैट इज़ ऑल व्हाट यू आर नीडेड टू डू। आप जो लिखते हो वो कम्युनिकेट अच्छे से होना चाहिए, बस अगले वाले बंदे को समझ आना चाहिए। दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। कोई फैंसी टर्म्स नहीं यूज़ करने हैं, कोई फैंसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करने अलग से नहीं जाना है, फिर वही करते रहोगे, यूपीएससी कब करोगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सिंपल ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड इंग्लिश आनी चाहिए एंड दैट्स ऑल, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ अ गुड एसे, जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस करना बाकी है, कुछ पॉइंट्स। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एज फ्रॉम बेसिक्स, you need to understand the importance of framework and structure of the essay. You need to understand the content and substance of your essay. कि आपके जो points हैं वो valid होने चाहिए, आपका जो content है वो improvised होना चाहिए। Language में expression and presentation you cannot miss out on the logic. जब मैंने अभी बात की थी rational decision making की, इट मीन्स दैट अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, आपने वो पॉइंट पहले रीज़न किया हुआ है कि आप उस पॉइंट को क्यों लिख रहे हो और आप उस पॉइंट के बदले कोई और पॉइंट क्यों नहीं लिख रहे हो, आप क्यों सिग्निफिकेंस दे रहे हो इस चीज़ को दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेल एम्पावरमेंट, ठीक है, आप इसको क्यों सिग्निफिकेंस दे रहे हो? बिकॉज यू माइट हैव रीजनड दिस थिंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना। वहाँ पे अगर आपको पता है, अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है, आपने लॉजिक लगा रखा है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ एसे राइटिंग। इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप हमारे साथ एसे राइटिंग करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कोहेरेंस, हाउ टू ब्रिंग ब्रेविटी टू योर आंसर्स, हाउ टू ब्रिंग कॉम्पैक्टनेस, लूसिडिटी और द ओरिजिनलिटी ऑफ वेरिफिएबल बिलीव्स, ये आप कैसे लेके आओगे अपने आंसर्स में, और दी एडवांस लेवल ऑफ आंसर राइटिंग फॉर दैट मैटर आपको कैसे करना है कि आपका ऐसे ऐसा कैसे बने दैट इट्स पर्टिकुलरली दी पॉलिसी मेकिंग अप्रोच, इट्स रीडर फ्रेंडली इन नेचर, इट हैज़ दैट पॉलिसी मेकिंग माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसे चेंज होगा, आपको क्या क्या करना है सो दैट यू प्रोवाइड अ सिल्वर लाइनिंग अराउंड योर ऐसे, ठीक है, वो ऐसे चमकेगा कैसे, ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी डेल्ट इन, बट बहुत टाइम लगेगा उसमें, आपको ज्वाइन करना होगा और आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर ऐसे में आपको इनपुट्स मिलेंगे, आपके सेशंस होंगे, 1-on-1 सेशंस होंगे,
आपके डिस्कशन सेशंस होंगे, आपको क्लास में बिठा के सिखाया जाएगा, तब आपको पता चलेगा दैट एक एसे को इम्प्रोवाइज कैसे करें, और एक एसे में अगर किसी इंसान को 110 नंबर आते हैं तो मुझे 170 कैसे आएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, तो कम एंड ज्वाइन। नाउ दिस इज सम you can take it as a token of a gift from Perfection IAS that these are some quotations जो आपको understand हो सकती है, अगर नहीं भी होती है I will make you understand a bit of it. For example, quotation is about that human rights are women's rights, ठीक है, and women's rights are human rights. You need to understand this thing कि क्या है the point of stress, ठीक है, or the point of gravity or the center of gravity of these topics of these quotes. जब भी आपके पास कोट आता है टॉपिक में, आपको इस कोट को अपने पूरे एसे में एक्सप्लेन करना है. यू फर्स्ट नीड टू इंश्योर दिस थिंग दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. आपको इन सब एसेज में हर एक टॉपिक में आपको ये समझना है दैट कि ये जो चीज़ है, ये जो कोट है, बोला गया है, किसने बोला, कब बोला, डजेंट मैटर, बट दिस कोट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, किस पॉइंट पे फोकस करना है, बस दैट्स इट. इफ इट सेज दैट हिलरी क्लिंटन बोलती है दैट ह्यूमन राइट्स आर वुमेन राइट्स एंड वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, सो व्हाट डू यू थिंक, what is the point she makes out of it by this statement that human rights are women rights and women's rights are human rights? What is the point here? What is that point जो इसमें implicit है, जहां पे आपको देखना है, that is the violation of rights. That is the discrimination which has been transcendental. ठीक है, that is the discrimination or that is the inequality which has turned into gender inequality. आप इस हिस्से को लिखोगे तो आपको ये भी लिखना है that what is the women representation at the international bodies, at the international government levels, at the government levels of developed countries, at the government levels of इंडिया, एट द गवर्नमेंट लेवल्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे. ठीक है, इन एम्प्लॉयमेंट, इन सोशल सेक्टर, इन पिंक कॉलर जॉब्स, इन डिफेंस, हर जगह पे. ठीक है, व्हाट आर देयर राइट्स? इज इट ओनली अबाउट इकोनॉमिक राइट्स, और इज इट ओनली अबाउट सोशल राइट्स, और इज इट ओनली अबाउट द सोशल इक्वालिटी और द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इनसाइड अ फैमिली? इज इट ओनली अबाउट दैट? Or is it something beyond that? Is that discrimination just economic discrimination कि उनको जॉब नहीं मिल रही है? Or is it biological discrimination जो उनके साथ नेचर ने किया हुआ है? Or it's a multi-level discrimination that is a black African woman who is illiterate in a rural area. How much levels of discrimination is she facing? ठीक है, how much levels of discrimination is she facing? तो that is how you need to decipher this essay. आपको इस essay के अलग अलग perspectives देने हैं. That is it really the human rights and women rights that they are comparative or they are in sync or they are parallel to each other, or is it actually that the women rights are a subpart of human rights? Or is it actually that the women rights or the male rights, these are not different rights, they are actually the human rights? ठीक है, तो इस कोट को वैसे समझना है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ऐसे ही हम डिसाइफर करेंगे हर कोट को, हर एक ऐसे को. यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ अराउंड 100+ कोट्स. ठीक है, आई गेस मोर देन 200 कोट्स आर देयर, जिनका हम लिस्ट दे देंगे और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, और उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस अनदर कोट बाय W.H. Auden. He says that
thousands have lived without love, ठीक है, but not one without water. This quote signifies the importance of water and it signifies कि पानी और प्यार दोनों ज़रूरी है, ठीक है. But he says that in order to live you need not love but water, ठीक है. But what is this life, ठीक है, where there is no love? He says that thousands have lived. What is this life where there is no love? Or what is the life where there is no water? Is this topic about environment, ठीक है, or is this topic about the environmental sustainability, the shortage of water which has been created in the recent past? As we have seen, the maximum number of cities in Delhi, India also are getting water scarce now. There is no water. Everywhere in Delhi the water is polluted and groundwater with arsenic. Now what is the significance of love then? What is the significance of water and what's the significance of love? You need to understand both of it. आपको ये पता होना चाहिए that what is the center of gravity of this topic. ऐसे you just note these down. It's about democracy also, some different topics are there. आप इनको note down करो and you should prepare all of this as a part of your like daily practice. आप इनको थोड़ा सा decipher करो. If you face problems you can freely come to us. आप आओ, we will discuss it and I'll show you that how these essays are different, how the perspectives are different, how the approach of these essays will be totally different, ठीक है. तो we will discuss it, but if you are attempting these on your own level, आप आ सकते हो, we can discuss it freely, nothing to worry about. You need to understand this slide very well, that is कि आप इंट्रोडक्शन में क्या करो, ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंट्रोडक्शन में क्या करना है. हमने लिंकिंग पैराग्राफ्स को डिस्कस नहीं किया, विच आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एसे. आपको लिंकिंग पैराग्राफ्स को डिस्कस करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है. दैट इज़ कि अगर आपने ये नहीं समझा कि आप इंट्रोडक्शन से उठ के बॉडी में कैसे आओगे और बीच का जो पैराग्राफ होगा वो आपका कनेक्टिंग पैराग्राफ होगा, ऊपर इंट्रोडक्शन के नीचे बॉडी के. अगर आप बॉडी के 3 से 5 डायमेंशंस दे रहे हो या 5 से 8 डायमेंशंस दे रहे हो तो हर डायमेंशन को आपस में लिंक करने के लिए आपको एक पैराग्राफ चाहिए, आपको एक लिंकिंग पैराग्राफ चाहिए, एक कनेक्टिंग पैरा चाहिए, एक ऐसा स्टोरी लाइन चाहिए जो आपके फ्लो ऑफ थॉट्स को मेंटेन करके रखे. तो दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट हेयर. बॉडी में वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट, ठीक है, दैट इज द नॉर्मेटिव अप्रोच और द पर्सपेक्टिव्स एंड द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. वे फॉरवर्ड में योर प्लान शुड बी एक्शनेबल इन नेचर. आप जो कंक्लूजन में दे रहे हो वे फॉरवर्ड, इट शुड बी क्लियर एंड टोटली एक्शनेबल. दैट इज द पॉलिसी मेकिंग अप्रोच और द प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है. अगर आपके पास ये अप्रोच है और ये आप वे फॉरवर्ड में दे रहे हो, देन ओनली इट मेक्स अ सिल्वर लाइनिंग अराउंड योर एसे. और आप कंक्लूजन में यू नीड टू प्रोवाइड अ फाइनल थॉट और यू कैन रीअसर्ट योर पोजीशन इफ इट्स एन ओपिनियन बेस्ड एसे, ठीक है. चलो मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर द कीज ऑफ द राइटर. You can keep a note of it. This slide is very much important, ठीक है. अगर आपका ऐसे कन्वेंशनल है, स्टैटिक है, डेफिनेशन ओरिएंटेड है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का ऐसे है, देन आप ये 3 चीज़ें प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने ऐसे में. इफ़ दिस इज़ करंट बेस्ड ऐसे फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस और अबाउट क्लाइमेट चेंज और अबाउट द इश्यूज़ विच आर देयर गोइंग ऑन, टेरिटोरियल अग्रेशन, ठीक है, जो बॉर्डर लाइंस पे हो रहा है, और इट्स एन ऐसे अबाउट द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन और द ग्लोबल क्राइसिस विच इज़ हैपनिंग देयर. तो देन आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है. तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू नीड टू कीप अ व्यू और अ नोट ऑफ दीज रिपोर्ट्स, लाइक IPCC का जो रिपोर्ट आता है जो अभी 2022 में आया था. यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट यू मेंटेन रेलिवेंस टू ऑल द GS पेपर्स ऑफ योर essay. Then only you can ensure that
कि अगर कोई भी रीसेंट न्यूज़ है या डेटा है या रिपोर्ट है, अगर आप उसका रेलेवेंस अपने जीएस पेपर के साथ नहीं बिठाते हो, दैट मीन्स यू आर लैकिंग ऑन योर बेसिक्स। आपको सिलेबस का नॉलेज है तो सही, बट आप एनालिटिकल लेवल पे अपने सिलेबस को लिंक नहीं कर पा रहे हो करंट डायमेंशन से। ठीक है, यूपीएससी का सिलेबस इज़ नॉट ओनली योर सिलेबस, इट्स योर जॉब। ठीक है, वाई? बिकॉज द सिलेबस कंप्राइजेज ऑफ एवरीथिंग विच इज़ देयर इन सोसाइटी, और जो कुछ भी सोसाइटी में हो रहा है दैट इज़ योर जॉब, बिकॉज यू आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ कम्स एन एसे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। वी विल जस्ट ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दिस एसे, एंड दिस एसे सेज दैट साइंस एंड एजुकेशन विद मोरालिटी इज द नीड ऑफ आर। ठीक है, चलो इस एसे को अगर हम नॉर्मल वे में समझे तो ये क्या बोल रहा है, दैट साइंस एंड एजुकेशन में हमें साथ में क्या चाहिए, और मोरालिटी चाहिए, है ना। एक तो हमें साइंस चाहिए था, दूसरा हमें एजुकेशन चाहिए, तीसरा मोरालिटी चाहिए। बट करंटली इट्स द नीड ऑफ आर, ये अभी चाहिए। दिस मोरालिटी इज द नीड ऑफ आर। नाउ इस ऐसे के 4 डायमेंशन निकल के आ गए, है ना, बट 4 के 4 हम कंसिडर नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट टेक साइंस एंड एजुकेशन प्लस मोरालिटी इज द नीड ऑफ आर। ठीक है, अब इस ऐसे का ब्रेकडाउन हो गया। वी नीड टू अंडरस्टैंड साइंस एंड एजुकेशन। ठीक है, साइंस एंड एजुकेशन विद मोरालिटी, व्हाट विल बी देयर, और क्या होगा अगर ये विदाउट मोरालिटी होगा। ठीक है, तो द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस ऐसे इज मोरालिटी। ठीक है, दिस मोरालिटी हैज़ बीन देयर सिंस एंशिएंट टाइम्स। हम सुनते आ रहे हैं दैट अर्लियर वी यूज टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये मोरालिटी का स्कोप कितना है, ये मोरालिटी बोलती क्या है, इस मोरालिटी को डिफाइन करेंगे हम इंट्रोडक्शन में। दैट इज इट सेट्स लिमिट्स ऑन एक्सेस। दैट इज जब भी इंसान अपनी बाउंड्री से बाहर जाना चाहता है, देयर कम्स द मोरालिटी। मोरालिटी इज अ रेस्ट्रिक्शन, मोरालिटी इज अ रेस्ट्रिक्शन टू मेंटेन द डिसिप्लिन। मोरालिटी इज समथिंग कि अगर आपके पास मोरालिटी नहीं है देन यू आर डूइंग सम सिंस, एज हाईलाइटेड बाय गांधी जी। ठीक है, व्हाट ही सेज दैट साइंस विदाउट मोरालिटी इज अ सिन, एजुकेशन विदाउट मोरालिटी इज अ सिन। ठीक है, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें आ गई। हमने इसको डिफाइन भी कर दिया, हमने इसका इंपॉर्टेंस भी बता दिया, दैट हाउ इज दिस द सेंटर पॉइंट ऑफ द essay and how can we define, how can we understand the center point of this essay, that is morality. If we remove this morality from science and education it will be total a disaster. और उसके बाद we have signified our point with the quote of गांधी जी। ठीक है, तो हमारे पॉइंट के आर्ग्यूमेंट में दोनों चीज़ें हैं, एक फिलोसोफर भी है और उसके साथ साथ उस पॉइंट से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन है और जो बेसिक सिग्निफिकेंस है मॉरलिटी का वो भी हमने लिख दिया। वी आर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग दीज थिंग्स, आपको ये याद रखना चीज़ है दैट हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद साइंस एंड एजुकेशन, दैट व्हाट इज अ साइंस एंड एजुकेशन, वॉज इट एजुकेशन और साइंस विच हैज़ हेल्प ईच अदर, जैसे साइंस ऑफ मेकिंग फायर, ठीक है, and education of making this fire and making this education transcendental in nature. ठीक है, if science is the discovery, अगर साइंस एक डिस्कवरी है और एक इनोवेशन है और एक इन्वेंशन है साइंस, एजुकेशन इज द सपोर्टिंग रोल और दिस इज द नेचर और दिस इज द वे टू कीप साइंस ट्रांसेंडेंटल इन नेचर। ये साइंस एक इंसान को पता चल गया, वो आगे कैसे बढ़ाएगा, ही हैज़ द ओनली टूल दैट इज एजुकेशन। तो बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो द थिंग इज साइंस हासिल करते करते या एजुकेशन हासिल करते करते बोथ द थिंग्स आर देयर विच आर इन टैंडम। साइंस एंड एजुकेशन साथ साथ में चलने वाली चीज़ें हैं
और इन दोनों को साथ साथ में चलते चलते मोरालिटी को साथ में रखना ज़रूरी है। क्यों रखना ज़रूरी है? नाउ वी विल टेक 2 dimensions of this essay or 2 perspectives of this essay, not particularly dimensions but perspectives. One will be science and education without morality, ठीक है, और इसको हम brainstorm करेंगे. Then we will also understand that science and education with morality, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद वी विल गो टू नीड ऑफ आर. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. दैट हाउ टू डू दिस विल बी शोइंग यू हाउ टू डू दिस. यू शुड कीप अ नोट ऑफ ऑल ऑफ इट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. तो फर्स्ट इज साइंस एंड एजुकेशन विदाउट morality. I'll be using some short forms. You can understand them very well that this is without morality. ठीक है, साइंस एंड एजुकेशन विद मोरालिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज मेडिसिन. ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. ठीक है, इफ इट इज विद मोरालिटी देन इट विल बी हेल्पफुल इन डिजीज कंट्रोल, एंड इफ इट इज विदाउट मोरालिटी, है ना, तब क्या होगा? विद मोरालिटी एंड विदाउट मोरालिटी इट विल लीड टू बायोलॉजिकल वॉरफेयर. देन देयर विल बी लैब ओरिजिनेटेड और लैब मेड वायरसेस जो आपको यहाँ पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर में यूज़ कराए जाएंगे. ठीक है, देन अगर आप मोरालिटी और विदाउट मोरालिटी का डिबेट उठाओ, then science and education with morality will lead to development. ठीक है, and without morality it will lead to destruction. ठीक है, अब आप इन दोनों चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स देना स्टार्ट करो. तो आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट कहाँ से होंगे और वो आर्ग्यूमेंट्स कहाँ तक चलेंगे? स्टार्ट करेंगे हम एग्रीकल्चर से, जैसे विद मोरालिटी और विदाउट मोरालिटी. ठीक है, विद मोरालिटी एग्रीकल्चर वॉज फॉर सर्वाइवल, बट विदाउट मोरालिटी इट वॉज फॉर एक्सप्लॉयटेशन. गिव द एग्जाम्पल्स. ठीक है, कि हाउ एजुकेशन, हाउ दिस एग्रीकल्चर लेड टू एक्सप्लॉयटेशन. देन द सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी ऑफ डिफेंस. ठीक है, हमने डिफेंस में स्टार्ट किया था दैट वी विल प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर, बट विदाउट मोरालिटी इट विल लीड टू व्हाट? टेरिटोरियल अग्रेशन. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे आप? अभी ले लो एग्जाम्पल, पंजाब का एग्जाम्पल ले लो, फॉर दैट मैटर आप एग्जाम्पल ले लो ग्रीन रेवोल्यूशन का. ठीक है, टेरिटोरियल एग्रेशन में वी ऑल नो दैट चाइना, रशिया एंड ऑल ऑफ इट. ठीक है, देन यू कैन गो टू एजुकेशन ऑल्सो. एजुकेशन का एग्जाम्पल दो, दैट साइंस एंड एजुकेशन विद मोरालिटी विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू अ हेल्दी सोसाइटी, एंड विदाउट मोरालिटी व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी नो मॉरल्स, मतलब नो एथिक्स. लाइक वहाँ पे क्या होगा? फिर आप मटीरियलिज्म और हेडोनिज्म के शिकार हो जाओगे. ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो. बट द पॉइंट इज़, अगर हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स ऐसे दिए या 5 आर्ग्यूमेंट्स ऐसे दिए फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, है ना, ठीक है, तो हम पहले कौन सा पॉइंट लिखे और दूसरा कौन सा पॉइंट लिखे, तीसरा कौन सा पॉइंट लिखे? अगर आप यहीं पे एक और पॉइंट लिखो, पॉलिटिकल इन नेचर और पॉलिटिक्स, यू कैन स्टार्ट विद पॉलिटिक्स जो विद एथिक्स थी. एग्जाम्पल दे सकते हो आप, वुड्रो विल्सन का एग्जाम्पल दे दो, गांधी जी का एग्जाम्पल दे दो, जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल दे दो. विदाउट एथिक्स यू कैन कंपेयर देम टू हिटलर, मसोलोनी. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं यहाँ पे.
जब आप ये ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है दैट विदाउट मोरालिटी, और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद मोरालिटी। इन सब चीज़ों में आपको प्रायोरिटाइज करना है और सीरियली इनको अरेंज करना है, ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे दैट पॉलिटिक्स आपका पहले नंबर पे आएगा, एजुकेशन और डिफेंस आपका दूसरे नंबर पे आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, एजुकेशन आएगा, मेडिसिन आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली अरेंज करनी है और ऐसे ही इनका फ्लो ऑफ थॉट आपको पूरे ऐसे में मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट विल बी कि जो चीज़ हमें इसके बाद डिस्कस करनी है इस ऐसे की, दैट इज नीड ऑफ द आर। वाई इज साइंस एंड एजुकेशन विद मोरालिटी द नीड ऑफ द आर। ये नीड ऑफ द आर क्यों है, सबसे पहले ये चीज़ समझनी है। व्हाट आर द करंट चैलेंजेस ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, ये समझना ज़रूरी है। तो क्या करोगे यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है दैट व्हाट आर दी करंट चैलेंजेस, और करंट चैलेंजेस में आप क्या क्या लिख सकते हो। अगेन वी विल टेक द सेम डायमेंशंस फ्रॉम पॉलिटिक्स टिल एजुकेशन और टिल साइंस, एजुकेशन और डिफेंस, एवरीथिंग वी विल टेक इन, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट, दैट इज नीड ऑफ द आर। Why is it the need of the hour? Then we will provide the conclusion on the basis of this need of the hour, because this signifies something, that is you need to be in presence, in present. Maximum number of the students, जब ये ऐसे हमने पूछा था टेस्ट सीरीज में, maximum number of the students they discussed about nuclear warfare, they discussed about Japan, Hiroshima, Nagasaki, they discussed about Hitler, Mussolini, they discussed about world wars, cold wars, but the point is need of the hour. What is this need of the hour at the current dimension? अभी क्या चीज़ है, अभी अगर आपने पहले एग्रीकल्चर डिफाइन किया ना, दैट फर्स्ट इट वॉज फॉर सस्टेनेंस, लाइवलीहुड और सर्वाइवल, देन इट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन। नाउ देर आर डिफरेंट चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड टू एग्रीकल्चर, वो सब चीज़ें हो गई। अभी करंट क्या है, अभी करंट ये है दैट एग्रीकल्चर से नीड्स टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ बिग इशू। देन हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, वी विल डू इंडोर फार्मिंग और वी विल डू दी फार्मिंग बेस्ड ऑन न्यूट्रिशंस, वी विल डू दी फार्मिंग बेस्ड ऑन न्यू मेथड्स। अभी क्या करना है, व्हाट वी हैव डन वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन, और व्हाट वी हैव डन वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। वी शुड गो बैक टू द नेचर, है ना, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज द मोरालिटी ऑफ एनवायरमेंट और द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ अर्थ इटसेल्फ। पहले हमारा चैलेंज था दैट सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, देन हमारा चैलेंज था पावर थ्रू एग्रीकल्चर, देन हमारा इकोनॉमी बेस्ड था एग्रीकल्चर पे, और उसके बाद वी सॉ दैट नाउ एग्रीकल्चर इज़ अ पॉइंट जहाँ से हमें अर्निंग हो सकती है। अभी हमारा क्या है दैट वी नीड टू मेंटेन दिस अर्थ ऑल्सो विद दिस एग्रीकल्चर, तो उस पॉइंट पे लेके जाना है इस पॉइंट को, ठीक है। तो हमने दिस इज़ द फ्लो ऑफ दिस पॉइंट, और इस फ्लो को मेंटेन करना है आंसर में, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एजुकेशन का, ठीक है, जो हमने पहले भी लिखा। अगर आप इस ऐसे में एग्जाम्पल्स कम भी लिखते हो चलेगा, बट आपका आर्ग्यूमेंट पूरा कंक्लूड होना चाहिए, हर एक आर्ग्यूमेंट। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिगिनिंग से, आपका करंट डायमेंशन आना ज़रूरी है, आपको इसको अभी प्रेजेंट पे लाना ज़रूरी है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। वी स्टार्टेड विद गुरुकुल, उसके बाद हमने क्या किया, वी रीच्ड दी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, commercialization of this education. How was this commercialization of this education? अगर आप अभी देखो तो जितना भी हम देख रहे हैं पिछले 20 साल 25 साल में, we saw that there was highly commercialization of agriculture this education. जब हम देखते हैं that the
British education, or we start with the Macaulay's Minutes, or we start with the private schools, we start with the high donation oriented schools जहाँ पे 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ donation, and all of it, that was the stuff. But what is the current challenge? Have you seen currently the debate which is going on YouTube, that is buying and selling of teachers? ठीक है, ये गुरुकुल था जो एक गुरु के बेसिस पे चलता था, एंड नाउ व्हाट्स एजुकेशन टुडे? अब ये गुरु ही लाइक इट्स इरोडेड टू दैट लेवल, द मोरालिटी हैज इरोडेड. ठीक है, आपको ये इरोजन दिखाना ज़रूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश दिस थिंग दैट हाउ इज दिस मोरालिटी द नीड ऑफ द आवर. मेक सेंस हियर? आई गेस दिस डिस्कशन इज इनफ, not enough actually, but yes, you should understand that how to do with this. There are examples in this essay which are from nuclear energy. हमने न्यूक्लियर वॉरफेयर से स्टार्ट, हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया, वी वेंट टू न्यूक्लियर वॉरफेयर एंड देन टू न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे दी रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज़ दी एनर्जी जो हमेशा चलेगी, जो ख़त्म नहीं होगी. न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी डेवलप्ड, but we have recently seen that over dependence of these nuclear energies by France has led to something which was about to happen, a disaster. ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. वी विल स्टार्ट डिस्कस विद टैक्सेशन, वी विल डिस्कस दी साइंस, वी विल डिस्कस दी मॉली which is the this sheep which was developed through biotechnology. We will discuss gene editing, the human made babies or the customized babies. That is all we will discuss in this topic, science and education with morality. ठीक है, but that takes time and that takes a sense of maturity. जब आप mature हो जाएंगे इस चीज़ पे, that how essay writing should be done. 2022 के essay हैं, these were comparatively less easy than 2023. आप इनको अटेम्प्ट करो, इसमें से कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करो. आप 2021 के ऐसे को अटेम्प्ट करो. आपको किसी भी ऐसे को समझने में दिक्कत आता है, अटेम्प्ट करने में दिक्कत आता है, अटेम्प्ट करने के बाद आपको इसको इवैल्यूएट कराना है, तो आप हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हो. वी आर हेयर, आई विल बी देयर. आप डायरेक्ट आके रिसेप्शन पे हमारे साथ आके मिल सकते हो, बैठ सकते हो, बात कर सकते हो. You're most welcome, and we from Perfection IAS wish you all the best for your preparation. Do come and join us in the next upcoming batch for UPSC. All the best. Thank you once again.